Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia and I am Pushpanjali Chalia. So today I have come with chapter 4 sorting materials into groups and we will do the question answers of this lesson. Before that we will see the facts that matter. There in this lesson some keywords are given which we have find in the lesson. So I will give some quick reference like hard. Hard means what? Hard, a material which is difficult to compress or scratch is said to be hard. जिसको हम लोग compress भी नहीं कर सकते हैं और stretch भी नहीं कर सकते हैं तो वो hard होती है. Insoluble. These are all properties of material. Insoluble means substances which do not mix with water and do not disappear in water even after stirring for a long time are called insoluble in water. जब कोई भी चीज अगर पानी में बहुत देर तक मिलाने के बाद भी मिक्सअप नहीं होती है तो उसी चीज को हम insoluble in water कहते हैं. Luster. Luster means materials that are shiny or their freshly cut surfaces are shiny are called lustrous materials and their shine is called luster. Materials that have luster are usually metals. जिसमें ज्यादा शाइन होती है वो material. The matter from which something is or can be made is called material. कोई भी चीज से कोई चीज बनाई जा सकती है, कोई भी रॉ मटेरियल जैसे होती है कच्चा सामान से, तो वही मटेरियल कहलाता है. Metal. It is a hard, shiny, solid material which is able to be shaped and can conduct electricity and heat. मेटल जो होती है वो अगर हम लोग डिफाइन करें तो वो एक हार्ड, बहुत शाइन करने वाली एक सॉलिड मटेरियल होती है जो कि जिसमें कि अच्छे से कोई भी शेप दिया जा सकता है और ये गुड कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी और हीट. देन ओपेक. Opaque, the materials through which we are not able to see are said to be opaque. Opaque जिसके भी आर पार हम नहीं देख पाते हैं. Rough. Rough भी एक प्रॉपर्टी होती है. An object having an uneven or irregular surface, not smooth or level or polished, is said to be rough. जो कि polished नहीं होती है, बिल्कुल हाथ से छूने से खुरदरा लगता है तो rough होती है. Soluble. Soluble जो होती है वो substances which completely disappear or dissolve in water are called soluble in water. पानी में जो बिल्कुल घुल जाता है वही soluble in water कहलाती है. Translucent. The materials through which objects can be seen but not clearly are said to be translucent. Translucent में क्या होता है कि हम लोग को उसके थ्रू थोड़ा बहुत कुछ रोशनी तो दिख जाएगा लेकिन अच्छे से हम लोग नहीं बता पाएंगे कि दूसरे पार में क्या है, वो ट्रांसलूसेंट होगी. उसके एग्जांपल आपको वीडियो में, मेरे वीडियो में जो कि हमने लेसन को पढ़ा था उसमें आपको जरूर मिल जाएगा. ट्रांसपेरेंट. द मटेरियल्स थ्रू व्हिच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली आर सेड टू बी ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट जो होती है जिसके आर पार बिल्कुल अच्छे से हमें सामान कुछ भी दिख जाता है तो क्या होती है कि वो ट्रांसपेरेंट होती है. हमें ये पता चल गया है कि मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज. उसके प्रॉपर्टी की जितने भी मिलने वाले मिलते हैं सिमिलैरिटीज कहलाती है, जो भी नहीं मिल पाते हैं वो डिसिमिलैरिटीज कहलाती है. उसके बेसिस में ही हम लोग ग्रुपिंग करते हैं. फॉर एग्जांपल हार्ड और सॉफ्ट. हार्ड मटेरियल्स को अलग रख सकते हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स को अलग रख सकते हैं. सॉल्युबल और नॉट सॉल्युबल इन वाटर को जो पानी में घुल जाता है और नहीं घुलता है उसको हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं अलग से. और मेड ऑफ मेटल और वुड. अदर मटेरियल्स. फ्रेशली कट सरफेस हैज लस्टर और लुक्स डल. इस तरह से हम लोग शॉर्ट आउट कर सकते हैं. Materials can be grouped on the basis of whether the object is solid, liquid or gas. इसमें भी हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं solid, liquid और gas की बेसिस में भी. Whether it is conductor of heat or it is a non-conductor of heat. For example, metals are conductor of heat, but wood, plastic are non-conductors of heat. We can also group materials on whether they float or sink in water. इस तरह से हम लोग grouping कर सकते हैं. So, आप लोगों को लेसन पढ़ने से और मेरे वीडियो देखने से ग्रुपिंग करने का बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा. Now we will do the exercises. Given here is question number 1. Name 5 objects which can be made from wood. Wood का बना हुआ 5 सामान. Table, chair, doors, boat, bed.
ऐसे कोई भी 5 सामान आप लोग लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, you can write answer like this. 5 objects that can be made from wood are table, chair, bed, door, bullock cart. Question number 2. Select those objects from the following which shine. कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हैं जैसे कि ग्लास बॉल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट. इसमें से शाइन कौन कौन से कर रहे हैं? तो ग्लास बॉल एंड स्टील स्पून विल शाइन. क्वेश्चन नंबर 3. मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम व्हिच दे कुड बी मेड. ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, मटेरियल्स दिए हैं, तो आपको मैच करनी है कि कैसे इस बुक को किस चीज से बनी है. पेपर्स के साथ मैच करनी, इस तरह से. रिमेंबर, लेकिन आपको याद रखना है कि हो सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट हमें 2 चीज मटेरियल से भी बनाई जा सकती है. जैसे कि चेयर. चेयर हमें वुडन भी मिल जाती है, साथ में प्लास्टिक की भी मिल जाती है. टॉयज हमें वुडन भी मिल जाती है, साथ में प्लास्टिक की भी मिल जाती है, और क्या, और कपड़ों की भी मिल जाती है. isn't it? तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है. Remember, an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects. इसका आपको ध्यान रखते हुए इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल की 2 कॉलम बना के ऑब्जेक्ट्स में बुक आएगा. तो मटेरियल, बुक इज मेड ऑफ पेपर. टम्बलर मेड ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक. चेयर कैन बी मेड विथ wood and plastic. Toy can be made with wood, paper and plastic. Shoes can be made with leather. So मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ग्रुपिंग और शॉर्ट आउट के बीच में हम लोग इतना किस लिए पढ़ रहे हैं. Isn't it? State whether the statements given below are true or false. So you have to write true. If it is true, you have to write true. Or if it is false, then you can write false. Like this. Stone is transparent while glass is opaque. No, it's false. इसमें उल्टा कहा गया है. Stone is not transparent but it is opaque and glass is transparent. ऐसा होना चाहिए था, isn't it? क्योंकि स्टोन से हमें आर पार नहीं दिखती है, ग्लास से हमें दिखती है. Number 2, a notebook has luster while an eraser does not. False. नोटबुक में कोई लस्टर नहीं होती है, कोई शाइनिंग नहीं होती है. अगर हम लोग काट के भी देखें तो भी हमें एजेस में शाइनिंग नहीं आएगी, लेकिन इरेजर में हो सकती है. Number 3, chalk dissolves in water. False. Number 3 is also false. Chalk जो है insoluble in water होती है. A piece of wood floats on water. True. Sugar does not dissolve in water. False. Sugar तो अच्छे से dissolve हो जाती है. Oil mixes with water. False. Sand settles down in water. True. Sand जब भी हम लोग पानी में घोलते हैं तो वो नीचे सेटल हो जाती है. Vinegar dissolves in water. Yes. Vinegar जो है पूरा घुल जाती है, मिक्सअप हो जाती है. Now question number 5. Given below are names of some objects and materials. Water, basketball, orange, sugar, globe, apple and other picture. Group them as round shaped and other shapes. तो इन सामानों को आपको राउंड शेप में और अदर शेप में ग्रुपिंग करनी है. जैसे कि बास्केटबॉल. बास्केटबॉल क्या होता है? राउंड इन शेप. एप्पल क्या होती है? राउंड इन शेप. ऑरेंज ऑल्सो राउंड इन शेप. अदर पिक्चर यानी कि घड़ा, वो भी राउंड इन शेप. देन अदर शेप में क्या क्या आ गया? वाटर एंड शुगर. और इन्हीं सामान को फिर आपको ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स में भी करनी है ग्रुपिंग. तो ईटेबल्स वाटर, बास्केटबॉल इज नॉट नॉन ईटेबल्स. Then orange is eatable. Sugar is eatable. Globe is not eatable. Apple is eatable. Other picture is non-eatable. आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं. जैसे कि पहले आंसर नंबर A लिखिए राउंड शेप, और उसमें बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल, अदर पिक्चर ऐसे लिखिए. फिर अदर शेप्स में वाटर, शुगर. Then B, ईटेबल्स में वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल. नॉन ईटेबल्स में बास्केटबॉल, ग्लोब, अदर पिक्चर. इस तरह से आप लोग डिवाइड करके अच्छे से सिस्टमैटिक वे में लिख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर. चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन. आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता है जो कि फ्लोट एंड वाटर होते हैं, जो कि फ्लोट हो जाते हैं पानी के ऊपर, उसके एक लिस्ट बनाइए.
आंसर, सम आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर लिस्टेड बिलो। और इन्हीं आइटम्स को आप फिर ऑयल या फिर केरोसिन में फ्लोट होती है या नहीं, उसके लिए एक आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। लाइक प्लास्टिक बॉटल फ्लोट्स इन वाटर, पीस ऑफ पेपर फ्लोट्स इन वाटर, piece of sponge floats on water, piece of thermocol floats on water, wood floats on water, bamboo floats on water, plastic ball floats on water, cork floats on water, ice cubes भी floats होते हैं water में, and oils also floats on water. B, list of items that float on and oil. इन्हीं में से कुछ आइटम जो है ऑयल में भी फ्लोट हो जाती है, जैसे कि पेपर, प्लास्टिक शीट, वैक्स, वुड, थर्मोकोल। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो यू कैन कमेंट मी, ओके, इन द कमेंट बॉक्स। लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट फ्लोट ऑन केरोसिन। केरोसिन में कोई अगर फ्लोट होती है तो पेपर फ्लोट हो जाती है, थर्मोकोल, थिन प्लास्टिक शीट, और दिस शुड बी शीट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने क्लास 1 से ही अपने ऑड वन आउट किया था। मीन्स क्या होता है कि अगर 5 सामान एक साथ हैं, उसमें से कोई किसी का प्रॉपर्टीज बिल्कुल मैच नहीं कर रही होती है तो वही ऑड वन होता है। लाइक चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। तो क्या हो रहा है कि चेयर, बेड, टेबल एंड कपबोर्ड आर नॉन लिविंग थिंग, दे आर मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक, एंड ये बेबी जो है, बेबी इज अ लिविंग थिंग एंड ह्यूमन बीइंग, सो बेबी विल बी ऑड वन। आप इसको ऑड वन को आउट कीजिए। Next, rose, jasmine, boat, marigold, lotus. B, rose, jasmine, boat, marigold, lotus. इसमें rose, jasmine and marigold, lotus are flowers, and boat is a water transport, so boat will be odd. इसमें boat odd one है। Aluminium, iron, copper, silver, sand is odd one. Aluminium, iron, copper and silver are metal and sand is non-metal, so it is odd one. Sugar, salt, sand, copper sulfate. इसमें भी sand ही odd one होगा। ये देखिए, आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। नंबर ए में odd one baby, नंबर बी में odd one boat, नंबर सी में odd one sand and नंबर डी में odd one sand। अभी हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस बिल्कुल फिनिश हो गए हैं। अभी हम लोग थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे that will be important for preparation of your exam. आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आप वर्कशीट चाहे तो यू कैन कमेंट मी। आप अगर मुझे कमेंट करते हैं तो मैं आपको और भी वर्कशीट दूंगी। नाउ सम क्वेश्चंस आर देयर विद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, Why do we need to group materials? Give one reason. हम लोग को materials को ग्रुप करने की क्या जरूरत पड़ गई है, उसका एक एग्जांपल दीजिए। We often group materials for our convenience, ताकि हमें थोड़ी सी सहायता हो चीजों को ढूंढने में। It helps to describe their properties, और उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्क्राइब करना इजी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, Suggest 2 bases on which we can group objects. किस 2 bases में हम लोग ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं। मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द ऑब्जेक्ट्स, एग्जांपल वुड और मेटल, प्लास्टिक। कोई भी सामान जो कि वुड से, मेटल से या प्लास्टिक से बनती है, हमें अलग कर सकते हैं। मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सॉफ्ट और हार्ड, हम लोग इस बेसिस में भी कर सकते हैं ग्रुपिंग। और सब्सटेंस इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर, इस बेसिस में भी हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन बी कंप्रेस्ड, सॉफ्ट और हार्ड। अच्छा बच्चों, अभी आप ही बताइए, जो कि हम लोग कंप्रेस यानी कि हम लोग हाथ से निचोड़ पाए या फिर उसको बिल्कुल छोटा बना दे हाथ में दबा के, तो वो हार्ड हो गई या सॉफ्ट चीजों का हम कर सकते हैं कंप्रेस? यस, आप सभी को पता है कि सॉफ्ट अगर चीज होगी, जैसे कि स्पंज को हम लोग कंप्रेस कर सकेंगे, लेकिन वुड बहुत हार्ड होती है, इसको हम लोग अपने हाथ से भी नहीं कंप्रेस कर पाएंगे और कंप्रेस नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट ए लस्ट्रस मटेरियल आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। इसमें 4 चीजें दी गई है, उसमें से शाइन वाला, लस्ट्रस यानी कि शाइन वाला मटेरियल कौन से हैं? वुड में शाइनिंग नहीं होती है। एल्यूमिनियम, आपने एल्यूमिनियम की बर्तन तो जरूर देखी होगी, बहुत शाइन करती है। प्लास्टिक, कॉटन, इससे सबसे ज्यादा शाइन हमें एल्यूमिनियम में मिलती है, प्लास्टिक, कॉटन, और वुड में नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच मटेरियल इज जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग पेन्स। पेन किसकी बनती है? आप लोगों ने सबने पेन्स देखी होगी जिससे हम लिखते हैं,
वो कभी तो प्लास्टिक की और कभी मेटल की बनी होती है, प्लास्टिक और मेटल। इज ऑयल सॉल्युबल इन वाटर? आर छूट गया है, इसमें वाटर आएगा। क्या तेल पानी में सॉल्युबल होती है? नो। ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका प्रॉपर्टी हो गया ऑयल का, बट फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, बल्कि फ्लोटिंग होती है वाटर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, नेम टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर मेड फ्रॉम ओपेक मटेरियल्स। आप ऐसा कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बताइए, सामान के बारे में, जो कि ओपेक मटेरियल की बनी होती है। जैसे कि वुडन डोर, हमें वुडन डोर के आर पार नहीं दिखता है। ब्लैक बोर्ड, स्टील प्लेट, स्टील प्लेट को अगर हम लोग देखें तो हमारा अपना ही चेहरा दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो भी ओपेक होती है। व्हाट इज कॉमन बिटवीन सॉल्ट एंड सैंड? अब है सॉल्ट यानी कि नमक, सैंड यानी कि बालू, दोनों में कॉमन क्या है? डिफरेंसेस तो आप लोगों को बहुत पता है, लेकिन उसमें कॉमन भी कुछ होती है। बोथ हैव मास एंड आर इन सॉलिड स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको कोई भी एग्जाम के लिए अभी से आपको जो है बड़े होकर अपने एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करना है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को याद रखना बहुत जरूरी है। चाहे तो आप थोड़ा सा इसका वो कर लीजिएगा, एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। सॉल्ट जो है उसमें भी एक मास होती है, सैंड जो है उसकी भी मास होती है। मास जो किसमें होती है? जो कि जिसमें एक वॉल्यूम हो, यानी कि जो कि एक जगह को ऑक्युपाई करे, तो उसी में वही मास होता है। तो आर इन सॉलिड स्टेट, और दोनों ही सॉलिड है, सॉल्ट एंड सैंड। लिस्ट 3 लिक्विड्स व्हिच आर ट्रांसपेरेंट। ऐसा 3 लिक्विड्स आप लोग बताइए जो कि ट्रांसपेरेंट है। अब आप सोच रहे होंगे लिक्विड में तो हमें इतना ट्रांसपेरेंट लिक्विड, पानी तो हमें दिख जाती है, दूसरे तो नहीं दिखते हैं, मगर है, ये जानना जरूरी है। वाटर, अल्कोहल एंड एसीटोन बेंजीन, ये दोनों भी जो है ट्रांसपेरेंट होते हैं। राइट 2 सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड फ्रॉम लेदर। लेदर से बनी 2 चीजें, बेल्ट एंड शूज, ये और बैग्स भी होती है, लेकिन अभी 2 ही चीजों की बताए हैं, तो बेल्ट एंड शूज। राइट 2 गैसेस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। 2 गैस ऐसे जो कि पानी में मिक्स हो जाते हैं। एक तो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन पानी में मिक्स होने की वजह से एनिमल्स सांस ले पाती है पानी के अंदर के। पेड़ पौधे जो भी उगते हैं, वाटर प्लांट्स, वो भी वहां जिंदा रह सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आप एक चीज में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपको मिलती ही है, वो इतने अच्छे से मिक्स होकर रखी होती है कि हमें अलग से कार्बन डाइऑक्साइड फ्लोट होता हुआ या सिंक होता हुआ नहीं दिखता है। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द गैसेस सॉल्युबल इन वाटर। नेम 2 गैसेस व्हिच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऐसे 2 गैसेस जो कि पानी में घुलते नहीं है, जैसे कि हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। आपने देखे होंगे कि हाइड्रोजन गैस को अगर हम लोग बैलून में डालें तो वो बैलून उड़ने लगती है। नाइट्रोजन गैस को शायद आपने अभी तक नहीं देखी होगी, लेकिन आप लोगों को लेबोरेटरी में दिखेगा। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो पानी में मिक्स नहीं होती है, वो इनसॉल्युबल होती है पानी में। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अभी तो आप ये जान लीजिए, और बड़े होने के साथ विद एक्सपेरिमेंट वी विल डू, हम लोग पूरा इसको जानने की कोशिश करेंगे। राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इसको बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये आपको एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। लाइक अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लोट और सिंक इन वाटर, ट्रांसपेरेंसी। ये 4 प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज को शॉर्टिंग आउट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज अ टम्बलर नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। टम्बलर कभी किसी कपड़े के पीस से क्यों नहीं बनाई जाती है? बिकॉज वी यूज टम्बलर्स, यूज किस लिए करते हैं हम लोग टम्बलर्स को? मेड ऑफ ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल टू कीप अ लिक्विड। कोई भी लिक्विड चीजें रखने के लिए करते हैं। दीज सब्सटेंसेस कैन होल्ड अ लिक्विड। और जो भी सब्सटेंस, इसको भी हम लोग प्रॉपर्टी में जब हम लोग मटेरियल्स को डिवाइड करके रखे हुए हैं, तो उसमें से जो भी चीज वो जिसकी प्रॉपर्टीज हार्डनेस होगी, तो उसको हम लोग टम्बलर के रूप में बना पाएंगे। जैसे कि वी यूज टम्बलर्स मेड ऑफ ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल टू कीप अ लिक्विड। दीज सब्सटेंसेस कैन होल्ड अ लिक्विड, क्योंकि ये पानी को होल्ड कर सकती है। ए टम्बलर मेड ऑफ क्लॉथ कैन नॉट होल्ड अ लिक्विड बिकॉज, लेकिन कपड़े से बनी जो टम्बलर होगी वो पानी को होल्ड यानी रोक नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि क्लॉथ पीस इज नॉट हार्ड एनफ टू होल्ड लिक्विड्स, बहुत हार्ड नहीं होती है ताकि पानी को रोक ले। क्लॉथ पीस हैज वेरी माइन्यूट पोर्स थ्रू विच द लिक्विड ओजेस आउट। क्लॉथ पीस में बहुत माइन्यूट पोर्स यानी कि छेद होते हैं जिससे कि पानी निकल जाती है बाहर।
Question number 3, what are the similarities between iron, copper and aluminium? Iron, copper and aluminium की similarities, they all have luster, इसमें shining होती है तीनों में, they are all metal, वे तीनों ही metal है, they are hard, वह hard material है. Why is water important for our body? अब सबसे खास प्रश्न, इस प्रश्न को आपको, ये वाले क्वेश्चंस जो है आपको किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं. If you are preparing for Olympiad also, these questions are very important. So water can dissolve a large number of substances, so it is needed by the body. It is also major part of our body cells. हमारे बॉडी, सिर्फ बॉडी हमने पहले पढ़ा था कि पानी बॉडी में आधा पोर्शन तो पानी का ही होता है, लेकिन अभी आपने बॉडी से जाकर सेल्स तक पहुंच गए हैं, क्योंकि अभी आप लोग ज्यादा माइन्यूट स्टडी के लिए आगे बढ़ रहे हैं साइंस में. तो सेल्स में भी जो है मेजर पार्ट जो होती है, बड़ा हिस्सा जो होता है पानी का होता है, पानी भरा होता है. और पानी एक ऐसा चीज है जो कि ज्यादा चीजों को डिसॉल्व करती है. अगर हमारे बॉडी में कोई टॉक्सिन्स भी जा रही है, उसको भी पानी डिसॉल्व करके हमें बॉडी से निकाल सकती है. अगर हमारे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना है, उसके लिए भी पानी में घुल के ब्लड हमारे बॉडी में आसानी से सर्कुलेट हो सकती है. तो इसी तरह से बहुत पानी में, क्योंकि सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है, जो हमारे बॉडी में जरूरत नहीं होगी वो भी डिसॉल्व हो जाएगी और उसको निकाल दिया जाएगा बॉडी से पानी के थ्रू. और अगर जो जरूरत होती है विटामिन मिनरल्स, वो भी पानी में मिक्स होकर हमारे पूरे बॉडी तक सप्लाई पहुंच सकती है. तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द बेसिस फॉर शॉर्टिंग मटेरियल्स? अगेन शॉर्टिंग मटेरियल्स के लिए कौन कौन से बेसिस हम लोग यूज करते हैं, ये पहले भी मैंने बता दिया है. मटेरियल्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज. मटेरियल के किसी भी चीज के प्रॉपर्टीज में डिसिमिलैरिटीज, प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ लिए थे ये सारे, जिसमें सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं चीजों को. ओके, नाउ अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई क्वेश्चन अराइज होते हो, प्लीज कमेंट में in my comment box and I will try to solve it. और अगर आपको ओलंपियाड वगैरह और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी एक्स्ट्रा वर्कशीट चाहिए तो प्लीज कमेंट में. सजेस्टेड एक्टिविटी, हम लोग फिर से टेक्स्ट बुक में आ गए हैं. टेक्स्ट बुक में क्योंकि सजेस्टेड कुछ एक्टिविटी दी थी और मैं चाहती हूँ कि साइंस में अच्छा होने के लिए एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज एक्टिविटीज अगर आप लोग ये करते हैं, अभी घर में हैं आप लोग कर लेते हैं, तो दैट विल बी गुड. लाइक नंबर 1, सो मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ, आपको एक्टिविटी खुद से करनी है. You may have played a memory game with your friends. आपने मेमोरी गेम तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ खेली होंगी. Several objects are placed on a table. टेबल में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रख दिए जाते हैं. You are asked to observe them for a few minutes. थोड़े सेकंड के लिए आपको देखने के लिए कहा जाता है. Go into another room and write down the names of all objects that you can remember. और दूसरे रूम में जाकर आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखे हैं उसमें से जितने भी आपको याद रहे हैं वो आपको बताने होते हैं. Play this game. ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खेलिए with a difference. लेकिन थोड़ी सी इसमें डिफरेंस आएगी. Ask all the participants in the game to remember objects with some particular property while playing this memory game. Remember and write down the names of objects that are made of wood or objects that are edible and so on. Have fun. कुछ सामान इकट्ठा कीजिए. पहले जब आप लोग छोटे थे तो आपको क्या क्या सामान आपने देखे हैं वो दूसरे रूम में जाके बताना होता था. अब आप लोग बड़े हो गए हैं, आप लोग इसको सॉर्टिंग आउट करने लगे हैं, क्लासिफिकेशन आप लोग जान गए हैं. तो जितने भी सामान रखे हैं उसको 2 या 3 बेसिस में आप लोग जाके नाम लिखिए. आप लोग एक बार तो सामान को देखिए, फिर वुडन सामान कौन कौन से थे, हार्ड और लस्चरस कौन कौन से थे, देखने में शाइनिंग वाले सामान कौन कौन से थे, सॉल्युबल पानी में सॉल्युबल सामान कौन कौन से थे और इनसॉल्युबल सामान कौन कौन से थे. इस तरह से जो भी प्रॉपर्टीज थे जिससे कि हम लोग डिफरेंसेस निकाल सकते हैं कोई भी मटेरियल के, उस तरह का एक चार्ट बना के और कौन कितना सामान को क्लासिफाई कर सकते हैं ये देखिए. नंबर 2 एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी. From a large collection of materials, make groups of objects having different properties like transparency, solubility in water and other properties. बहुत सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करके आप उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कीजिए. आप लोग एक तो कौन सा मटेरियल ज्यादा, कोई भी ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से, फिर सॉल्युबल इन वाटर और नॉट एंड अदर प्रॉपर्टीज. जितने भी प्रॉपर्टीज हमने दूसरे अपीयरेंस के हिसाब से और हार्डनेस, इसके हिसाब से आप लोग इसको
प्रॉपर डिवाइड कीजिए चीजों को। In later chapters, you will also learn about properties of materials related to electricity and magnetism. That means good conductor of magnet, good conductor of electricity. इसका भी आप लोग पढ़ेंगे आगे जाके। तो आप लोग पहले इसीलिए शॉर्टिंग आउट करना अच्छे से सीख लीजिए। After making different groups from the collected materials, try and find out if there are any patterns in these groups. For instance, do all materials which have luster conduct electricity? और जो भी शाइन करने वाले हैं वो क्या सभी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को पहली बार मिल रही है। गुड कंडक्टर किसे कहा जाता है? जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमारे घर में जो वायर्स लगे होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसीलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी पास होकर हमारे बल्ब तक पहुंचती होगी, है ना। तो इस तरह का आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ या मेरे साथ कोई भी डिस्कशन हो तो आप कर सकते हैं और मुझे कमेंट कीजिए। जितना कमेंट करेंगे मैं आप लोगों को उतना ही अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाऊंगी, या फिर आपको क्या समझ में नहीं आई है, मेरे ड्रॉबैक्स क्या रह गए हैं, दैट आई विल ऑल्सो एबल टू नो, और मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके साथ ही आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो जरूर लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। एंड दिस इज द टाइम, आप लोग अभी क्लास 6 में हैं तो ओलंपियाड वगैरह के एग्जाम देना आपको बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो यू जस्ट कमेंट में, ओके। बिकॉज मैं अकेले वीडियोस बनाती हूँ तो शायद मेरा थोड़ा स्लो भी हो जाता है कभी, बट आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मुझे एक बात पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इस चीज में थोड़ा सा इनको और बता देना चाहिए, तो दैट विल बी गुड फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर मी। तो मेरा टाइम भी बच जाएगा और मुझे क्या पढ़ाना है आपको ये भी समझ में आ जाएगा। सो मेरे वीडियो को आप जरूर लाइक कर लीजिएगा और जितना हो सके शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और सबसे मेन थिंग देखिए, आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप लोग मेरे क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं, बट सब्सक्राइब करना कभी भूल जाते हैं। देखिए मेरे वीडियो में ही आप लोगों को ऐसे एक बेल रेड कलर का आइकन आपको दिखता होगा और सब्सक्राइब का एक लेटर भी यहाँ आ जाता होगा, तो आप उसको जरूर क्लिक कर लीजिएगा। जब क्लिक करेंगे और बेल आइकन भी बजाएंगे तो मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों ने मुझे क्लिक करके आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दी है और मुझे अच्छा लगेगा। सो दिस इज यही इतना ही मैं अभी कहने जा रही थी, और नेक्स्ट दूसरे क्लास में बात करेंगे। और आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बहुत खुश रहिए। खुश रहने से हमें पढ़ना भी अच्छा लगता है, हर चीज अच्छी लगने लगती है। धन्यवाद।